Good evening, friends. Welcome to the second session of the Dairy Technology teleconferencing session. In this session, we'll be talking about the quality aspects. As we know, the course is BPVI 017. We'll be talking about the Block 1, Unit 1. And to discuss the topic, we have with us Mr. Karan Nanda, who is the Senior Quality Control Manager in Mother Dairy. He has 35 years of experience in Mother Dairy and in particular quality control. So he will be discussing the block on quality assurance with focus particularly on the milk and milk products. I request Mr. Nanda to talk about the quality assurance, please. Thank you, Dr. Saluja. Good evening, students. Today I shall be talking to you about quality assurance, and as Dr. Saluja has said, this will be the block 1. I shall take up this unit 1 of this block. The unit consists of the objectives, a brief introduction about the unit, then what are the definition and components of food quality. Now these include food safety, nutritional value of food, and the sensory characteristics of food. Then we shall be talking about the functions of a quality control unit. Then what are the quality aspects of milk and milk products? And finally, what are the quality control tasks for the dairy industry? The objectives of this unit include, we shall try to define what is the food quality, how do you define food quality, what are the essential important components of quality, then a very important aspect of food safety which concerns everybody today. Then what we shall outline the various quality assurance activities to be undertaken. Then the importance of the quality aspects in reference specifically to milk and milk products. And eventually and lastly, the outline the quality control tasks in the dairy industry. Now what is quality? Today whenever a consumer wants to buy a product, any product, be it a food product or be it any other product, the first thing which comes into his mind is that what is the quality I am looking for. Specifically to food, what are the quality aspects and how do you define quality? The most important thing is who defines the quality. It is the customer eventually who buys the product who is going to say this quality is what I say is acceptable to me. So the characteristics of food acceptable to a consumer is basically what is going to be defined as the quality of your product. Then what are the aspects? There are certain external aspects like the appearance of a product, how does it look, how does it taste, and there are certain internal aspects which a customer cannot immediately judge, like the nutritional value, or if there is anything added to it which he cannot immediately judge. The third aspect is the food laws, which are local laws which every food product has to conform to. And in case you are interested in exporting your products, then what are the global laws or the laws to the country specifically where you want to export your product. What are the components, and we shall try to define now what is the meaning of food quality. Food quality you can define as it is a measure of the degree of excellence and degree of acceptability of your product by the consumer. The degree of excellence, a product can be good, but then how excellent is it when it is compared to other similar products of the same range available in the market, and how does the customer accept your product is how the customer will define the quality. It also includes safety and value for money. One of the very important aspects today, as in the news also you will be seeing that quality all around the globe, it is becoming a big catchword for food products, and safety is becoming very important for the consumer. And value for money, the customer pays some money for the product and he expects that he gets not only what he has paid for, but plus today he accepts a little bit more. So as a to summarize this, quality is the summary of features and characteristics of a product
or a service that bears on its ability to satisfy the stated or implied needs of a consumer. So the stated needs are like a customer wants to go and buy toned milk, so he obviously expects the characteristics of toned milk. And the implied needs would mean that it should be safe to consume, and it should be pleasant to consume. So these are the implied needs. What are the important components of food quality? The first important component is the food safety. Secondly is the characteristics of your sensory characteristics, and thirdly the nutritional value. So we shall go into these a bit more details. Food safety is of utmost concern for any industry or any food supplier, and there are two important terms related to this. What is the meaning of safe? Safe is whenever a consumer consumes a food product, nothing should happen to him, nothing harmful should happen to him. He should not get any adverse effects by consuming this product. And the second important term is hazard. So what is a hazard? Hazard is a component which has the capacity to cause harm to a consumer. So what is the objectives of food safety in terms of your whosoever is in the industry, people who are responsible for preparation of foods, selling of foods, to protect the food from microbial, chemical and physical hazards or contamination at all stages of milk production, handling, management of animals at the farm. So there is a call from, yes please, Karnal. Yes, Karnal Regional Center please. हेलो. Yes please. हेलो सर. Yes. हेलो सर जी, मैं रामपाल बोल रहा हूँ, एनडीआरआई करनाल का रहने वाला हूँ सर. हाँ पूछिए. तो मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ सर, जो हम लोगों ने जो एडमिशन लिया हो ना इसमें डीडीटी में. हाँ जी बोलिए. वो अधिकतर रूरल एरिया से है सर. हाँ हाँ. वो चाहते हैं कि आप थोड़ा जो आपकी टेलीकास्ट प्रोग्राम चला हुआ है ना सर, उसमें थोड़ा हिंदी में स्पीच दें सर. अच्छा ठीक है, जो अभी स्पीकर्स हैं बीच बीच में हम हिंदी का भी प्रयोग करेंगे. ठीक है, धन्यवाद. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू. Okay. So we were talking about the objectives of food safety. Food safety यानी कि जो भी आपका खाद्य पदार्थ है, जो भी आप खाने की चीज बनाते हैं, बेचते हैं, वो आपके जो कस्टमर है, कंज्यूमर है या जो ग्राहक है, उसके लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए. और हानिकारक कहाँ से शुरुआत होती है? जैसे मैं बता रहा था, मिल्क प्रोडक्शन, जहाँ पर कि आपके जो फार्म है, आपका जो बेसिक मिल्क प्रोडक्शन है, जो आपके जानवर हैं, गाय भैंसे हैं, वहाँ से शुरू होता है. वहाँ पर दूध किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, किस प्रकार से उसको हम हैंडल करते हैं जो आपके फार्म में मिल्क प्रोडक्शन. फिर ट्रांसपोर्टेशन, जब आप दूध को फार्म से लेके अपने डेयरी तक या चिलिंग सेंटर तक ले जाते हैं. स्टोरेज ऑफ रॉ मिल्क, किस प्रकार से आप दूध को स्टोर करते हैं, उसको रखते हैं. प्रोसेसिंग, आपके जो डेयरी में किस तरीके से आपने प्रोसेसिंग की, उसमें क्या क्या आपने सावधानियां बरती. देन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, आप अगर उसको दूध को कन्वर्ट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, घी है, मक्खन है आपका, या और भी अन्य पदार्थ जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसके बाद बनाने के बाद आप जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, किस प्रकार से ले जाते हैं, और स्टोरेज उसको किस तरीके से वहां पर मार्केट में रखा जाता है, किस कंडीशंस में रखा जाता है, और फाइनली कंज्यूमर को देने के पहले किस प्रकार से वो हैंडल किया जाता है. तो उसका एम यह है फूड सेफ्टी का कि फूड जो खाना है, जो भी आपका खाद्य पदार्थ है, वो एक होलसम यानी कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रिजर्व होनी चाहिए. उसमें जो भी उसके तत्व हैं उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन हैं, वो सब कम नहीं होने चाहिए, और किसी प्रकार से उससे आपको हानि नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं फैलनी चाहिए. फूड सेफ्टी में एक है फूड बोर्न इलनेसेस, यानी कि जो खाने के साथ जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं, वो अगर कैरी ओवर होती हैं और कंज्यूमर और ग्राहक तक पहुंचती हैं, तो ये एक हानिकारक हो सकता है ग्राहक को. उसमें जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, आपके वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, और दूसरा हो सकता है टॉक्सिन्स यानी कि जो
अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या उगते हैं इसमें आपके फूड में, खाद्य, ये जो आपके दूध में, वो भी एक कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि जब दूध में मिक्स होते हैं तो वो आपके जो नॉर्मल प्रोसेसिंग में कई बार खत्म नहीं होते और वो कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, तो वो हमारे को उसको बचाना है उससे। और ये किस प्रकार होता है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। पुअर हैंडलिंग, पुअर मतलब एक सही तरीके से आपने दूध को या कोई भी खाद्य पदार्थ को हैंडल नहीं किया, और उसकी प्रेपरेशन में, जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर आप दूध को प्रॉपर टेम्परेचर में पैस्चराइज नहीं करते तो चांसेस है कि उसमें भी कोई आपके डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई हानिकारक ऑर्गेनिज्म है, वो रह जाए और कंज्यूमर तक पहुंच जाए। और स्टोरेज, और दूध को अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया, क्योंकि हर एक चीज के एक स्टोरेज की कंडीशंस होती हैं, जैसे दूध को आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, जैसे 5 डिग्रीज और लेस, या फिर आपकी जो और भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर टेम्परेचर पे अगर स्टोर नहीं होंगे तो उसकी भी स्पॉइलेज हो सकती है, उसमें भी हानिकारक बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। फूड हैजर्ड्स, जो कि हानिकारक आपके जो फूड में जो भी पदार्थ हो सकते हैं वो क्या हैं? एक तो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल यानी जैसे बताया कि जो बैक्टीरिया है, वायरसेस वगैरह हैं। केमिकल हो सकते हैं, केमिकल यानी कि आपके कोई भी ऐसी केमिकल, उसमें पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं, आपके जो केमिकल क्लीनिंग सोल्यूशंस हो सकते हैं वो मिल सकते हैं, या कोई फिजिकल एजेंट्स भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज आपके फार्म में सबसे जो शुरुआत में है, कोई डस्ट है, डर्ट है, कोई ऐसी चीज टूट गई, कोई ग्लास का पीस ही टूट गया, इस प्रकार से कुछ भी चीज फिजिकल उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें अगर फूड खाने के अपने पदार्थ में आएंगी तो आपकी जो हेल्थ है, जो कंज्यूमर की हेल्थ है, उसमें कोई हानिकारक नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा और इसके डिटेल में हम बताएं, जो फिजिकल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, ये पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, कि क्या चीजें हो सकती हैं जो कि फूड हैजर्ड्स हैं, जो कि आपके खाने में जा सकती हैं, ताकि उसको आपको अगर नॉलेज होगी उसको आप बचा सकेंगे। जैसे मैंने कहा, ग्लास है, शीशे के टुकड़े हैं, आपके जब रिसेप्शन हो रही है, अगर आपके पास ऐसे कोई ओपन आपकी जो लाइटें हैं कहीं टूट गई और अगर वो कोई ग्लास पीस उसमें गिर गया तो आगे जाके हानिकारक हो सकता है। बाल है, एक बहुत बड़ी कॉमन चीज है कि लोगों के, अगर जो भी हैंडल कर रहा है, जो आपके जो कर्मचारी हैं, उनके बाल जा सकते हैं। पत्थर हैं, प्लास्टिक के पीसेज हैं, आजकल हर एक जगह प्लास्टिक यूज होता है। पार्ट्स ऑफ पेस्ट, मच्छर वगैरह हैं, जैसे उनके कोई आपने साफ किया हो या मारा हो, उनके कोई टुकड़े पहुंच जाए। इंसुलेशन है, या कोई भी जैसे बोन्स है, कोई हड्डी वगैरह हो, वो भी जा सकती है। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं? माइक्रोबायोलॉजिकल में पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि डिजीज या के जो भी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग ये होते हैं जो कि एक बार खाद्य पदार्थ में चले जाएं तो उसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन हाई हीट वगैरह में आप हीट से भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते और आगे तक कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। पैरासाइट्स हैं और वायरसेस हैं। केमिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं? माइकोटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। वेटनरी ड्रग रेजिड्यूज, आपने जानवर को कोई ऐसी ड्रग दी और वो आगे जाके दूध में आ गई और कंज्यूमर तक पहुंच गई। एंटीबायोटिक्स हैं, केमिकल रेजिड्यूज हैं, जैसे बताया कि अगर कोई आपने सफाई की हो और प्रॉपर्ली उसको रिंस नहीं किया हो आपके कोई इक्विपमेंट को, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सोडा लाई है, आपके एसिड है, या और भी कोई आपके क्लोरीन है, जो कि आप कॉमनली यूज किए जाते हैं डेयरी इंडस्ट्री में। देन नॉन परमिसिबल फूड एडिटिव्स, जो कि परमिटेड नहीं है, वो आप डाल दें उसमें, फॉर्मेलिन वगैरह जैसे ऐसी चीज हैं। देन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ परमिसिबल फूड एडिटिव्स, कई एडिटिव्स जो फूड में अलाउड तो होते हैं लेकिन आपने उसको जो मात्रा है, जो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा डाल दी उसमें। जैसे प्रेजर्वेटिव्स हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स में अलाउड होते हैं लेकिन आपने अगर ज्यादा डाल दी तो वो भी हानिकारक हो सकते हैं। पेस्टिसाइड रेजिड्यू एंड ग्रोथ सिमुलेंट्स और अडल्ट्रेंट्स वो हो सकते हैं जो कि जानबूझ के ये आपके जो दूध है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में डाले जाए। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, अभी ये तो हमने देखा कि भाई फूड सेफ्टी के बारे में थोड़ी जो जानकारी ली। अब हमारे पास क्या अवेलेबल स्टेप्स हैं या क्या अवेलेबल जो
डिटेल्स हैं या कोई अवेलेबल इस तरीके के सिस्टम्स हैं जिसको हम अपना सकते हैं अपने प्लांट में। तो एक है फूड मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन सिस्टम, जो कि ISO 22000 और 2005 सर्टिफिकेशन, ये लाइसेंस मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि ये अपना सकते हैं, एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन है। और इस जो स्टैंडर्ड को आप अगर फॉलो करें तो आपका जो फूड सिस्टम है आपकी जो प्लांट में या कोई भी फूड इंडस्ट्री में, तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ये हैंडल कर सकता है कि आपके जो फूड सेफ्टी है और जो क्वालिटी कंट्रोल के एस्पेक्ट्स हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको अपना सकते हैं। ये जो है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, दिस इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हैसअप सिस्टम। हैसअप सिस्टम ये होता है कि भी खाने में जब भी जो भी हम स्टेप्स लेते हैं एक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, तो उसके बीच में किस स्टेप्स पे जो फूड है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, जिस तरीके से कोई फूड हैजर्ड उसमें एंटर हो सकता है, तो उसको कैसे रोकना और उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये पूरा जो हैजअप सिस्टम है एक सिस्टमैटिक तरीका है जो कि आइडेंटिफाई करेगा आपके सिस्टम में कहाँ कहाँ पर आप रुकावट कर सकते हैं, कहाँ पर आप अपने कंट्रोल रख सकते हैं ताकि आपका जो फूड प्रोडक्ट है सेफ बने। एंड दिस इज कंपैटिबल विद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज पर ISO 9001:2000, उसी जो स्टैंडर्ड जो पुराना चल रहा है जो मोस्टली आजकल सारी डेयरीज काफी सारी डेयरीज में होगा, उससे कंपैटिबल है। तो जैसे कहा कि दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमैटिकली मैनेजिंग सेफ्टी इन फूड सप्लाई चेन्स। तो फूड सप्लाई चेन है यानी कि फार्म से लेके कंज्यूमर तक, तो उसको एक सेफ्टी कैसे मैनेज करनी है, ये पूरे सिस्टम को अपनाने से आपके जो इंडस्ट्री में या आपकी फैक्ट्री में आपके प्लांट में उसको आप लागू कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। दूसरा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 जो गवर्नमेंट की तरफ से ये लागू किया है, इसमें आप देखेंगे जो चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट टाइटल है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी। तो ये फूड सेफ्टी हर एक जगह आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि भी हमारे जैसे जो हम फूड में डील करते हैं। इट डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, यानी कि हम ऑपरेटर हैं, हम अगर आप ग्राहक के लिए कुछ फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और क्या जिम्मेदारियां हैं वो इसमें आपके डिटेल्स में मिलेंगी। लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, हमारी लायबिलिटी क्या है, लीगल लायबिलिटी क्या है। जो मैन्युफैक्चरर, अगर हम पैक करते हैं सिर्फ, मैन्युफैक्चर भी नहीं करते, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर्स एंड रिकॉल प्रोसीजर्स, यानी कि पूरे चेन में जो मैन्युफैक्चर करता है, जो कि फूड प्रोडक्ट को हैंडल करता है, उसको सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो लास्ट में कस्टमर को हैंड ओवर करता है, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और रिकॉल प्रोसीजर का मतलब अगर किसी भी स्टेप में हमें यह मालूम पड़े कि इस फूड प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम थी और हमें पहले पहचान लिया, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट से वापस कैसे पहुंचाया जाए, एक ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इसमें भी लागू है। सेफ्टी कंसर्न्स, सेफ्टी कंसर्न्स क्या है जो कि हमारे को एज अ फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या जो हैंडलर, एक है आइडेंटिफाई दी हैजर्ड्स, हमें पहचान होनी चाहिए हैजर्ड्स हमारे पूरे सिस्टम में क्या हो सकते हैं। दूसरा, एस्टिमेट द साइज ऑफ रिस्क, जो हमारे प्रोसेस में है उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, कितना रिस्क है कि भी जितने भी हमारे जो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स हैं, हैंडलिंग पैरामीटर्स में है, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क कितना है। और उसके बाद तीसरा है, जब रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर ली, हैजर्ड आइडेंटिफाई कर लिए, तो उस रिस्क को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं या टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं हमारे सिस्टम से। जो हैजर्ड्स क्या है, अब ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है हमारे, और ये कॉमन जो है पूरे किसी भी फूड इंडस्ट्री में या कोई भी हम फूड को हैंडल करते हैं। और वो हैजर्ड्स क्या है, एडिटिव्स, कलर्स एंड फ्लेवर्स। एडिटिव्स ये चीजें होती हैं जो कि हम दूध में या दूध मिल्क प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं, जैसे कि आपके कलर्स हैं, आपके स्टेबलाइजर्स हैं, आपके फ्लेवर्स हैं। तो ये एडिटिव्स के पहचानना जरूरी है कि इसमें अलाउेबल मात्रा कितनी है। कुछ प्रोडक्ट्स में ये अलाउड ही नहीं है, तो हमारे को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो एडिटिव्स हैं उस प्रोडक्ट में ना जाएं। नंबर 2, अगर हमारे को अलाउड है तो हर एक की एक लिमिट होती है, एक मात्रा होती है, हम कोशिश करें कि उस मात्रा से ऊपर किसी भी हालत में नहीं ऐड करना चाहिए। दूसरा, एंटीबायोटिक्स एंड अदर फूड एडिटिव्स। एंटीबायोटिक्स के भी आज ये जो हम रॉ मिल्क से लेके जब हमारे फूड प्रोडक्ट्स तक, तो हमारे को आइडेंटिफाई करना है जब हम दूध को खरीदते हैं
या हमारे प्लांट में आता है, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें उसमें एंटीबायोटिक्स हैं कि नहीं, और उसको प्रिवेंट करें अगर है तो उस प्रोडक्ट में, और हमारे आगे जाके फैक्ट्री में उसको हमारे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स एंड अदर ग्रोइंग एड्स, जो भी फार्म में आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं या कोई भी और एड्स हैं जैसे यूरिया वगैरह यूज करते हैं, वो भी किसी हालत में हमारे फूड प्रोडक्ट में, दूध में नहीं मिक्स होना चाहिए। इरेडिएशन, आजकल एक ये भी आ रहा है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उससे मिल्क को या प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने की एक टेक्निक्स हैं, तो ये भी देखना है कि भी वो इरेडिएशन जो है आगे फूड में कैरी ओवर ना हो। माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन, एक ये बड़ा कॉमन है कि भी किसी प्रकार से जो आपके बैक्टीरिया हैं वो दूध में और आपके जो मिल्क प्रोडक्ट्स में जो बैक्टीरिया है जो कि हार्मफुल है वो उसमें ना जाए। नेचुरली ऑकरिंग फूड टॉक्सिकेंट्स, कोई फूड के टॉक्सिन्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने हमने। देन न्यूट्रिशन, पेस्टिसाइड्स, पोल्यूटेंट्स, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड टेम्परिंग, इसमें जो है आपको देखेंगे न्यूट्रिशन में अगेन ओवरडोज नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे हम विटामिन वगैरह डालते हैं, ओवरडोज भी हानिकारक होता है। पेस्टिसाइड्स हैं, कॉमनली फार्म में यूज होते हैं, पेस्टिसाइड के भी एक आपको रिकग्नाइज करना है कि भी हमारे जो रॉ मटेरियल में पेस्टिसाइड्स की मात्रा विद इन अलाउएबल लिमिट्स है या नहीं है। पोल्यूटेंट्स आपके हो सकते हैं, कॉमन पोल्यूटेंट्स आप देखोगे जो दूध में सबसे बड़ा पोल्यूटेंट होता है, दूध में पानी मिलाते हैं लोग, और पानी का क्या है, अगर पानी आपने कहीं से भी गंदा पानी डाल दिया तो उसमें कुछ भी प्रकार से पोल्यूटेंट्स आ सकते हैं। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रोसेसिंग के समय आपने देखना है कि जो पैरामीटर्स हैं, एक एग्जांपल है जैसे पैस्चराइजेशन, अगर उसका टेम्परेचर आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो आपकी जो उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जो प्रॉपर पैस्चराइजेशन नहीं होगा तो वो कैरी ओवर हो सकते हैं। पैकेजिंग में आपके जो है, अगर पैकेजिंग मटेरियल है वो सही टेस्ट नहीं किया, उसमें कोई अगर खामियां पाई गई, कोई आपके जो उसमें हानिकारक जो अगर फूड जो आपके सेफ्टी से या फूड जो आपके फूड स्टैंडर्ड से मिलते नहीं हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के एक होता है कि भी जो अलाउेबल मटेरियल है जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हैं, तो हर एक कोई प्लास्टिक अलाउड नहीं होता फूड में, पर्टिकुलर उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मेंटेन करने हैं, और प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि मेरे इस फूड में क्या है, लेबल पढ़ के उसको पहचानना होता है कि भी ये फूड मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। अब जैसे कोई अगर आप दूध से एग्जांपल लें, हाई फैट मिल्क अगर आप देंगे तो उसमें होना चाहिए भी कितना फैट परसेंटेज है, क्योंकि कई लोग हैं जिससे को डॉक्टर से या जो हेल्थ के कारण मना होता है कि भी आप हाई फैट दूध नहीं लेंगे, तो वो जरूरी है कि लेबलिंग प्रॉपर हो ताकि कंज्यूमर पहचान ले ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। एंड लास्ट है टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब आपने फूड बना दिया, पैक कर दिया, आगे भेज दिया, तो क्या वो रास्ते में या ड्यूरिंग हैंडलिंग क्या उसको कोई छेड़छाड़ कर सकता है, या उसमें कोई खोल के या आपके पैकेजिंग को या किसी प्रकार से उसमें अडल्ट्रेशन कर सकता है कि नहीं। फूड सेफ्टी के बारे में हमने बात की, और इसमें आप देखेंगे हमारे को काफ़ी इसमें टेस्ट करने पड़ेंगे, काफ़ी समय लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों करें हम। सबसे बड़ी बात है कि एंश्योर सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। जो आपका फैक्ट्री में, आपके प्लांट में जो भी फूड प्रोडक्ट्स आपने बनाए, खाद्य पदार्थ, वो सेफ होने चाहिए ताकि कस्टमर पहचान जाए कि मैं इस कंपनी से या इस ब्रांड का अगर फूड लेता हूं तो मेरे को अश्योरिटी है कि भाई मेरे को कोई हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी पूरे तौर से उसकी परवाह करती है और सेफ्टी फैक्टर्स को नज़र में रखते प्रोड्यूस करती है। ग्रेटर हेल्थ प्रोटेक्शन, अगर सेफ फूड होगा तो ओवरऑल पब्लिक में जो ओवरऑल हेल्थ कंसर्न्स हैं वो कम होंगे, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको जो हेल्थ के रिलेटेड आपके जो और नुकसान होते हैं वो नहीं होंगे। दूसरा, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। आज की डेट में हम कहते हैं एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी चर्चा है, लेकिन एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात आती है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम वो मेंटेन करते हैं और अगर हमारे जो बाहर के देश हैं वहाँ पर पहचाना जाता है कि भी इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे स्टैंडर्ड से मिलते हैं, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाएगी कंपनी की। हेल्प टू मीट एप्लीकेबल फूड सेफ्टी रिलेटेड स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स।
मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप देखेंगे, जैसे PFA एक्ट है आपका, तो ये सेफ्टी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करना जरूरी है, क्योंकि इसको कानूनी तौर से आपको मीट करना है। डेमोन्स्ट्रेट कन्फर्मेशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, सिर्फ हमारे जैसे PFA के जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, बाहर अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अगर हम मीट करते हैं तो आपके जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है। एंड जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, अगेन जो आपके एक्सपोर्ट जो काउंसिल है उनके अपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मीट करने के लिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बाहर विदेश में भी बढ़ सकती है। एंड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ प्रोडक्ट सर्विस लायबिलिटी क्लेम्स। आजकल कंज्यूमर के पास एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि वो कल को आपके प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है वो कोर्ट में जा सकता है, कल को कह सकता है भाई इस कंपनी ने मेरे को ये प्रोडक्ट दिया जो कि मेरे हानिकारक था या वो मेरे स्टैंडर्ड से मीट नहीं किया। तो वो लायबिलिटी क्लेम्स जो हैं वो बड़े महंगे होते हैं, कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है और पूरी की पूरी कंपनियां तबाह भी हो सकती हैं अगर इस प्रकार से कोई भी एक ओवरऑल क्लेम आए और कंपनी की रेपुटेशन खत्म हो सकती है। आजकल के जो कुछ मैं जस्ट इसको बताऊंगा, जो रिसर्च कंसर्न्स ऑफ फूड सेफ्टी क्या है, जो कि काफ़ी चर्चा हो रही है इंटरनेशनली। प्राउंस हैं, देन एक बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी जो कि मैड काउ डिजीज कहते हैं, जेकब्स डिजीज है, डायोक्सिन्स हैं जो कि प्लास्टिक्स वगैरह से रिलेटेड है, एंड GM जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, इनकी काफ़ी चर्चा है इंटरनेशनल लेवल में। तो ये कंसर्न है कि हमारे को अगर हम अपने जो फूड प्रोडक्ट्स में इसके बारे में डिटेल में जानकारी हो और उसमें हम सावधानी बरतें। सेफ्टी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू। फूड जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक कंज्यूमर फूड क्यों लेता है। मेजर कॉज ये है कि भी उसको एक न्यूट्रिशन चाहिए, जीने के लिए, ग्रोथ के लिए आपको खाना तो खाना है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जब कस्टमर कोई भी एक फूड प्रोडक्ट लेता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो वो चाहता है उसमें पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है प्रिजर्व न्यूट्रिशनल वैल्यू एट ऑल स्टेजेस। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे आप मिल्क की बात लेते हैं, तो जब आपने फार्म से लिया और कस्टमर तक पहुंचाया, किसी भी प्रकार रास्ते में उसके जो भी आपके प्रोसेसिंग है, हैंडलिंग में, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। सो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब आप उसको प्रोसेस करते हैं, हीट करते हैं, कूल करते हैं, प्रेपरेशन है, आपको उसको किसी प्रकार कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं या उसको आप हैंडल करते हैं, स्टोरेज है आपको, और ट्रांसपोर्टेशन, तो न्यूट्रिशन वैल्यू एक पूरे स्टेजेस में कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है नॉलेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया, विटामिन ए है, एसिड में, लाइट, एयर, हीट में उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है। विटामिन सी है, एसिडिक कंडीशन में स्टेबल होता है, लेकिन अगर एल्कलाइन कंडीशंस हो तो उसकी भी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये पहचानना जरूरी है कि जो मेरे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको मैंने कैसे बचाना है टिल इट इज पैक्ड एंड सेंट टू द कंज्यूमर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी आप एक फूड प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट लेता है, तो वो जैसे कि एग्जांपल है कि भी दूध को अगर पैक्ड मिल्क है, जैसे कोई कंज्यूमर टोन मिल्क चाहता है तो उसको पता है टोन मिल्क में मेरे को फैट SNF क्या मिलेगा, ये तो उसको पता है। दूसरी चीज है कि भी पहली बार जब वो फूड को लेता है तो वो उसमें क्या देखता है, सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब तक ये मतलब जो हमारे 5 सेंसेस हैं, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हियरिंग, तो ये चीजें जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी तो चाहे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी हो आपके फूड की, कस्टमर जो फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेंसरी एट्रीब्यूट्स में थोड़ा और डिटेल्स में ले, कलर एंड ग्लॉस। सबसे पहले क्या इंसान देखता है कि फूड प्रोडक्ट है, जैसे आपका पैक्ड मिल्क है, तो सबसे पहले उसको आंखों से देखेगा क्या उसका कलर क्या है। दूध है, अगर सफेद है तो एक्सेप्टेबल है, अगर उसका कलर सही नहीं है तो कस्टमर पहले से ही उसको रिजेक्ट करेगा, उसको आगे जाके उसको ना तो वो छुएगा ना टेस्ट करेगा, वहीं पर ही रिजेक्ट कर देगा। कलर एंड ग्लॉस जो बताया, ग्लॉस एक होता है कि भी शाइन, एक प्रोडक्ट की
जो रिफ्लेक्टेंस है, तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, जब प्रोडक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो वो किस प्रकार से बिहेव करता है। उसमें जो टर्म्स आते हैं, ग्लॉसीनेस एक होता है कि भी एक शाइन है, ट्रांसपेरेंसी है, हेजीनेस, टर्बिडिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मैंने लिखा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप अपने लैब में इसको मेजर कर सकते हैं वेरियस जो पैरामीटर्स है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्या आपका फूड प्रोडक्ट है और उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कंज्यूमर चाहता है, और उसको हमने देखना है कि भी ये मैच करता है जो कंज्यूमर की जो विषय के भी इस प्रोडक्ट में मेरे को ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। दूसरा है विस्कोसिटी एंड कंसिस्टेंसी। विस्कोसिटी यानी कि भी गाढ़ापन। दूध का भी आप देखेंगे अगर पानी मिला हो तो कस्टमर एक पहली चीज देखता है कि भी उसको एक पहचान सी हो जाती है कि दूध में विस्कोसिटी कम है, ज्यादा है, आफ्टर एक्सपीरियंस से पता चलता है। कंडेंस मिल्क है, इसमें एक विस्कोसिटी बहुत जरूरी है, गाढ़ापन। आइसक्रीम है, रबड़ी, लस्सी वगैरह, ये चीजों में एक कंसिस्टेंसी मीन्स कि जो आपकी जो थिकनेस है, जो गाढ़ापन है, वो एक बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने एक प्रकार से दिया, कल उसका गाढ़ापन कम या ज्यादा हुआ तो कस्टमर क्या कहेगा, ये रोज रोज इसमें क्वालिटी में कोई फर्क है। तो आपको उसको कंसिस्टेंसी देनी है कि रोज रोज वही मात्रा में आप उसका गाढ़ापन दें। उसके लिए आपको जो विस्कोसिटी है उसको लिए आपको चेक करना पड़ेगा, पैरामीटर्स ले डाउन करने पड़ेंगे, और इसके लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, विस्कोमीटर वगैरह, जिससे आपके मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, और ये स्टैंडर्ड्स अपने हर एक प्रोडक्ट के तय कर सकते हैं। इसका ये जो है कैन बी यूज एन इंडेक्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स आपने कुछ भी एक प्रोडक्ट बनाया मिक्स करके, उसका एक इंडेक्स हो सकता है भी वो सही मात्रा में मिक्स हुआ है कि नहीं। सेंसरी एट्रीब्यूट्स में है साइज एंड शेप। ग्रेडिंग इनटू वेरियस साइज एंड शेप categories is usually one of the first steps in food processing operations of fruit and vegetables. साइज एंड शेप आप देखेंगे कि भी जो खास करके आपके जो ये इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में दिए हैं, भाई शेप क्या है। अब शेप भी आप देखेंगे, जो फॉर एग्जांपल आइसक्रीम आप लीजिए तो एक एक्सेप्टेबल कई शेप्स हैं, कोन्स हैं, आपके कप्स हैं, आपके स्टिक्स हैं, तो वो एक प्रॉपर शेप में अगर आप देंगे, प्रॉपर शेप होगी तो एक एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है कस्टमर के, जो कि एक्सेप्ट करता है कि भाई ये शेप अगर है तो एक आंखों को या आपको देखने में प्लीजिंग लगता है। तो उसको आपने ग्रेड करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर उसका साइज हो, जो कि कंज्यूमर को एक्सेप्टेबल है। टेक्सचर जो है ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कस्टमर के लिए, एंड ये प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आपने एग्जांपल दिए, रसगुल्ला, पनीर, छेना, खोआ, आइसक्रीम है, बटर है, घी है, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी वगैरह। तो टेक्सचर से क्या मैंने है, टेक्सचर जब आप किसी भी प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे, खाएंगे मुंह से, तो ये पता चलेगा उसमें कि उसका गाढ़ापन कितना है, उसमें एक रेजिस्टेंस क्या है, जैसे आप माउथ फील कहते हैं, उसमें रेजिस्टेंस कितनी है। आइसक्रीम में एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगी, चीज खाएंगे उसमें एक और प्रकार की रेजिस्टेंस होगी, और अगर आप उसको खाएंगे तो कितना मुंह में वो जो डिजॉल्व होता है या मुंह में स्टिक करता है, अटकता तो नहीं है। तो ये जो टेक्सचर है एक इम्पॉर्टेंट है हर एक प्रोडक्ट के लिए। जो एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, जैसे कस्टमर को मालूम है या कस्टमर एक यूज टू होता है कि भाई इस प्रकार से मैंने अगर सपोज गुलाब जामुन खाया तो मैं किस प्रकार से उसको फील करता हूँ। अगर बहुत हार्ड है आपका तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो टेक्सचर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने तय करना है मेरे प्रोडक्ट्स में कि किस प्रकार से होना चाहिए, और उसको किस तरीके से मैं मेजर करके और स्टैंडर्ड्स ले डाउन करूंगा। फ्लेवर, सेंसरी एट्रीब्यूट्स में फ्लेवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि कस्टमर खाना क्यों खाता है, न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन अगर उसका फ्लेवर सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो वो कस्टमर उस फूड प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब कस्टमर दूध पीता है तो उसको पता है कि दूध में किस तरीके का फ्लेवर आना चाहिए। अगर कुछ भी चीज उसके अलावा आई, कोई ऑफ फ्लेवर, कोई ऐसी चीज उसमें फ्लेवर में लगी जो कि नेचुरली नहीं है, तो कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू, वो सब सही हो। तो टेस्ट एंड अरोमा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, जब कस्टमर एक भी कोई भी फूड प्रोडक्ट मुंह में लेता है उसी समय वो जज करेगा उसकी क्वालिटी को
कि ये टेस्ट, ये फ्लेवर जो मैं यूज टू हूँ, जिसको जो मेरे को चाहिए वो है कि नहीं। फंक्शंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यूनिट। अभी हमने देखा कि ये जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल में जो हमने पहले देखा फूड सेफ्टी, फिर हमने देखा न्यूट्रिशन, और तीसरा देखा जो हमारे आपके सेंसरी इवैल्यूएशन। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि भी आपके फूड प्रोडक्ट में होनी चाहिए। लेकिन इसको मेजर करने के लिए या उसको इंश्योर करने के लिए कि भी ये चीज़ें आपके जो फूड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में, अपने प्लांट में, वो कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार वो आप दे पाते हैं कि नहीं, उसके लिए क्या है कि भी फंक्शंस हमारे को एज अ क्वालिटी कंट्रोल यूनिट क्या करना चाहिए। उसके लिए द नीड टू प्रोड्यूस एंड सेल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम्स। तो ये एक डेवलपमेंट है कि भी आज की डेट में कस्टमर, जैसे कहते हैं कस्टमर इज किंग, जो कस्टमर चाहेगा हमें वही देना है। अगर वो हम नहीं देंगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपके प्लांट को, आपके ब्रांड को फेल कर सकता है। उसके लिए एक बहुत जरूरी है हमारे जो अपने फैक्ट्री में, अपने प्लांट में एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम सिस्टमैटिकली उसमें हम अडॉप्ट करें, उसमें अपनाएं और उसको फॉलो करें। टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हैज टू बी पार्ट ऑफ एवरी फूड कंसर्न। हर एक फूड कंसर्न को ये बहुत जरूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसको पहचानना कि भी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज द इवैल्यूएशन ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट प्रायर टू इट्स मार्केटिंग। यानी कि कोई भी एक प्रोडक्ट हम अगर बनाते हैं उसको हम पहले टेस्ट करते हैं मार्केटिंग के पहले, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो दैट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी चेक्स एट द एंड ऑफ अ प्रोडक्शन चेन। यानी कि जब वो प्रोडक्ट बन गया फिर हम उसको चेक करते हैं भाई ये सही बना कि नहीं, और वो जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं जैसे पीएफए स्टैंडर्ड्स हैं या आपके फैक्ट्री के अपने स्टैंडर्ड्स हैं उससे मीट करता है कि नहीं। एंड असाइनिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू क्वालिटी कैटेगरीज लाइक हाई क्वालिटी, रेगुलर, लो या नॉन मार्केटेबल। तो हमने जब टेस्ट किया, चेक किया, तो ये देखा कि ये प्रोडक्ट सही है और मेरा एक बैच सही है, दूसरे बैच में देखा भी ये इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट हो सकता है, उसको हम सस्ते दाम में बेचें। या फिर ऐसा एक बैच हमने बनाया जो कि हमने देखा कि ये तो स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करता और वो फेल हो गया, तो उसको रीप्रोसेस करेंगे या उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये एक कंट्रोल सिस्टम है जबकि जो कि हम एक चीज बनाने के बाद चेक करते हैं। आजकल जो हमारे को जो हम देख रहे हैं भी जिस प्रकार से एडवांसमेंट है या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल से आज की डेट में काम नहीं चलेगा, हमको मूव करना है क्वालिटी अश्योरेंस की तरफ से। क्वालिटी कंट्रोल जैसे बनाया, एक बार चीज बन गई और सही नहीं बनी तो एक वेस्ट है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज है? इट इज द प्लानिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ एवरीथिंग डू विद द क्वालिटी थ्रू आउट द कंपनी। यानी कि हम प्रोडक्ट बनने के लिए वेट नहीं करेंगे, हर एक स्टेप में जो है आपने क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम लगाना है ताकि हर एक स्टेप पे ही पकड़ा जाए कि भी यहां पर हमने ये स्टेप जो करना था वो अगर सही किया है तो वो नेक्स्ट स्टेप को, जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट स्टेप को जाए कि भी ये सही, अब आगे आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसको हम और डिटेल में जाएं तो इट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी चेक्स एंड प्रोसीजर्स टू इमीडिएटली करेक्ट एनी फेलियर और मिस्टेक दैट इज एबल टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द इंटरिम प्रोडक्ट्स एट एवरी प्रोडक्शन स्टेप। तो जैसे बताया, दूध हमने जैसे एक्सेप्ट किया, रॉ मिल्क आपके फैक्ट्री में आया, उस समय आप चेक करेंगे भी वो सही है कि नहीं। सही है तो आप उसको आगे लेके अपने सिस्टम में डालेंगे। उसके बाद जब प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग समय, लेट अस से फॉर एग्जांपल पैस्चराइज किया, पैस्चराइजेशन के दौरान अगर आपने चेक किया कि भाई सही टेम्परेचर पे पैस्चराइजेशन हो रहा है, 5-6 घंटे आपने पैस्चराइजर चलाया, तो उस समय बीच में चेक्स होने चाहिए कि भाई वो सही प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं, वो जो टेम्परेचर है मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अगर किसी भी समय देखा कि वो टेम्परेचर या जो भी नॉर्म से कम आ गया तो उसी समय वो रोक के रीप्रोसेस होना चाहिए ताकि आगे जाने से बच जाए, ताकि फाइनल प्रोडक्ट तक ना पहुंचे। तो हर एक स्टेप में आपने पैरामीटर लगाने हैं कि जो प्रोडक्ट है वो वहीं पर रुक जाए जहां पर के उसमें अगर कहीं कमी पाई गई। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के क्या फीचर्स हैं?
ये एक इम्पॉर्टेंट है कि भी अगर हम एक क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस सिस्टम अपने प्लांट में, अपने फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं, तो एक उसके नियमित कोई स्टेप्स हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वालिटी पॉलिसी एज अ कंपनी मेरी पॉलिसी क्या है, क्वालिटी के लिए मैं क्या चाहता हूँ और मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एज अ कंपनी मैं क्या चाहता हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी में क्या हो सकता है, आपके जो कस्टमर के प्रति आप क्या चाहते हैं, आपके कंपनी के प्रति, आपने कंपनी के एम्प्लॉयज के प्रति, उसमें ये चीजें आ सकती हैं। आपके जो गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स, आपके जो प्रोसेसेस शुड बी द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसेस, आपके जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाना चाहिए। लेटेस्ट कोई नई चीजें अगर मार्केट में आती हैं, नए टेक्निक्स आते हैं, उसको आपको ने अडॉप्ट करना है। ये सब लेट डाउन होने चाहिए कि इन पॉलिसी को मैं फॉलो करूंगा एज अ कंपनी। देन डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिटी मैनुअल। एक बार ये तय हो गया कि मैंने ये चीजें अपने कंपनी में एज अ पॉलिसी करनी है, तो एक डिटेल क्वालिटी मैनुअल होगी, उसको ट्रांसलेट करना है इनटू एक्शन। कि भाई ये सपोज मैंने अगर क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होने चाहिए, तो पॉलिसी में क्लियर कट मैनुअल में आ जाना चाहिए भाई ट्रेनिंग सिस्टम मेरा क्या होगा, किस चीज में मैंने ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग के मेरे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, अपडेशन में कैसे करूंगा, और जो जिनको ट्रेनिंग दी है उनकी जो फीडबैक कैसे लेनी है, ताकि एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से ये एक मैनुअल में लेट डाउन हो। इस प्रकार से कोई भी स्टेप्स जो हम अपने पॉलिसी में डालेंगे वो मैनुअल में लेट डाउन होनी चाहिए। इंश्योरिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे क्वालिटी सिस्टम्स जो हैं एक पर्टिकुलर तरीके से चले, तो मेरे जो कर्मचारी हैं उनको बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए किस प्रकार से मेरे को ये फॉलो करना है। देन कंडक्टिंग पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट्स इस जरूरी है कि मेरे सिस्टम सही प्रकार से चल रहे हैं कि नहीं, मैं अपने एक ऑडिट सिस्टम बनाऊं, उनको इवेल्युएट करूं। देन अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई दिक्कत आती है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आती है, उसको मैं डिटेल में रिव्यू करूं कि वो किस कारण मेरी क्वालिटी खराब हुई प्लांट में, उसका रूट कॉज निकाल के और उसको एलिमिनेट करूं। एंड देन पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द सिस्टम बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि मेरी जो फैक्ट्री में, मेरे प्लांट में एक क्वालिटी सिस्टम चले, तो वो बहुत जरूरी है कि उसको सिस्टम को जो टॉप मैनेजमेंट ही रिव्यू करे, एक पीरियोडिक रिव्यू हो, आइदर इट कैन बी 3 मंथली, 6 मंथली, लेकिन वो रिव्यू इंपॉर्टेंट है विद ऑल दी टॉप पीपल ऑफ दी प्लांट, जो कि आपके हेड्स हैं, कि वो रिव्यू करे कि मेरा सिस्टम मैंने ले डाउन जो किया था वो अब सही प्रकार से चल रहा है कि नहीं, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे अगर थे कोई, और अगर कोई नई चीजें आई हैं मार्केट में या कोई नए सिस्टम्स, नई पॉलिसीज, उसको मैं इसमें हमारे जो पूरे सिस्टम में कैसे अडॉप्ट करूं। तो टॉप मैनेजमेंट अगर पूरी इन्वॉल्व होगी तो जो कर्मचारी आपका राइट वर्कर लेवल तक है वो भी इन्वॉल्व होगा, उसको भी मालूम होगा कि भी जो मेरी मैनेजमेंट है क्वालिटी को एक इम्पोर्टेंस दे रही है और वो जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमको बता दिया कि आप ये कर लो और उनसे डायरेक्टली कंसर्न है। तो ये सारा अगर सिस्टम में हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारे जो शुरू में मैंने बताया था, हमारे फूड सेफ्टी है, आपके जो फूड के न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं और जो सेंसरी इवैल्यूएशन है जो अभी कस्टमर को चाहिए, तो ये तीनों चीजें एक प्लांट मेंटेन कर सकता है और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है। Thank you, Dr. Nanda, for very comprehensively covering all the aspects, particularly with focus on quality assurance. You started with the food safety, then food hazards, then a food safety management system also, and then what are the difference between the quality control and quality assurance. And so this will help the students in comprehending the unit which is given in this block. Thank you very much. Thank you. Very